Okay, good morning. Two students are waiting. Shubham and Ashish Kumar Roy. Let them join. Okay, good morning, Shubham and Ashish. Kindly inform your classmates that class is going on and uh, join as soon as possible. मम्मी है बाथरूम में बेटा जाइए धुलवा लीजिए उसको हाथ धोना है धुलवा दीजिए तो रूम में है देखिए ना इसको मैं क्लास Okay, some of the students have joined. Till now, four of them have joined. Before the time they have joined, it's good to see that students are enthusiastic. Mushkan Kumar is also joining. Mukhil Kumar. Okay, so students are joining in. Okay, student. As you know, also this thing that. Class will be start at 8:05 and till that time if you have any kind of query then you can ask me any kind of query then you can ask me. Session will start 8:05. If you have any kind of query then you can put your query. Good morning, Sumit. Till now we have completed process, everything related with the process. Okay. Yeah, good morning, Nikhil. And if you have any kind of query, now it will, if I will tell you, it will be very typical to let me tell you how many topics we have cleared, but we have cleared all the things related to the process. And if you have any kind of query related with them, then you can put here and I will solve it. Okay. So till now, 15 of students have already joined. Okay, students are joining. 3 people are waiting. 4. Abhishek, Suraj, Simran, Rajiv.
Okay, so 1 minute left. It means you have no query from the previous session which we have completed. Okay, till now 21 of students have joined. Kumar Shabjit is also joined. Ricky Raj. Okay, 23. Okay, so Richa Kumari. Till 8:10, I will permit your classmates to join. After that, from today onwards, he will not allowed to join after 8:10. Okay. So, चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? बेसिकली हम ये जानेंगे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या फंक्शनैलिटी वगैरह ये हमको देता है, ठीक है. और हम ये भी जानेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम जानेंगे. आज हम फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, and we will look into the functionality also. We will look into the functionality also. Okay, so Akshay Raj, this is the main framework we will look. And even if you will go through this series of lectures, then you will get to have a glimpse about what are the topics we are going to learn in the operating system. Two people are waiting. Ashwarya and Swish. Okay. Again, two people. Okay. So let's start with the topics. Now, this is the class outline, what we are going to study. What is the introduction? What is the concept behind operating system? What is the review, historical perspective? We have gone through the process. We will look into, in a not in a detailed manner, but in a brief, we will see the synchronization, scheduling, deadlock. We have gone through scheduling in a very detailed fashion. We have a look into the memory management also, where we have various kinds of memory and how they are interconnected and what are the relationships. ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिटेल में जानेंगे हम. ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिटेल में हम जानेंगे कि उसका मैनेजमेंट कैसे होता है. पीपल आर ज्वाइनिंग, दैट्स व्हाई इट इज hard to continue this session. Okay, let them join. File system क्या होता है? Okay, again. अच्छा, बहुत लोग का, कुछ लोगों का, बहुत लोग का तो नहीं, कुछ लोगों का फैशनेबल नेम है Realme 5 और दिस एंड दैट, ठीक है. वो लोग थोड़ा सही कर ले. ऑल ऑफ यू स्टूडेंट प्लीज, आपको अपने नाम को यूज करने में शर्म नहीं आनी चाहिए. आपका नाम अच्छा है, ठीक है. यूज योर ओन नेम. जहां भी गूगल क्लासरूम में भी मैं बहुत अजीब अजीब सा लूसीफर और ये क्या 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 मैं देख रहा हूँ नाम. प्लीज यूज योर ओन नेम, ठीक है. फाइल सिस्टम क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है. बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड तभी हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में जब थोड़ा टाइम मेरे पास होगा कि मैं उसको डिटेल में जा सकूं, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज द क्लास outline. Now we will look into what is operating system, what is base,
साउंड नहीं आ रहा है क्लियर से। हेलो, सर साउंड नहीं आ रहा है क्लियर से। व्हाट इज योर नेम? सर राजकुमार सर। राजकुमार। आप यस सभी को सर। प्रॉब्लम है क्या? स्टूडेंट्स, राइट नाउ 30 स्टूडेंट आर ज्वाइंट। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज राजकुमार, जो आप अपने साइड से चेक कर लीजिए, थोड़ा इंटरकनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है क्या, मे बी पॉसिबल हो सकता है। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? आपने विंडोज वगैरह यूज किया है ना, विंडोज यूज किया होगा, और कुछ लोग ने लिनक्स वगैरह भी यूज किया होगा, यूनिक्स वगैरह भी यूज किया होगा, रेड हैट वगैरह भी यूज किया होगा, ठीक है, मैकिंटोश भी यूज किया होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज किया होगा। तो ये सब क्या है? दीज आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, अब चलिए कि व्हाट इज द नीड। सबसे पहले तो नीड क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये बात जानिए, इस चीज को याद भी रखिएगा जब भी कोई पूछे। इट प्रोवाइड्स अस इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स अस अ इंटरफेस। मतलब कि हमें क्या देता है? एक सिंपल कहा जाए तो एक माध्यम देता है कि हम कम्युनिकेट कर सके इजीली सिस्टम से। अब सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, yes, very good. Provide interface to connect user to the system. Okay, very good Papu. तो yes, तो ये क्या करता है? बेसिकली ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर जो है वो सिस्टम, ये जो सिस्टम है आपका, सिस्टम से क्या हो सके? कनेक्ट हो सके। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ऐश्वर्या, हाउ मेनी पप्पू प्रसाद इज देयर, मनीष कुमार, ठीक है। तो यूजर के लिए ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से वो क्या, यूजर जो है वो सिस्टम से इजीली कनेक्ट हो सके, ठीक है, इजीली कनेक्ट हो सके। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अब देखिए हमारे मतलब ऐश्वर्या, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा क्लास को टाइम पे ज्वाइन कीजिए। इट इज वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं क्लास चलता रहे, लोगों को ज्वाइन करता रहूं, इधर लेक्चर भी लेता रहूं, तो थोड़ा टाइम पे क्लास ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपको क्या है? कार है, ठीक है, आपके पास एक कार है, व्हीकल है, ठीक है। अब इस कार में क्या है? वी हैव अ इंजन हियर, वी हैव इंजन हियर। अब अगर आपके कार को स्टार्ट करना है, अगर आपके कार को स्टार्ट करना है तो आप क्या करते हैं? आजकल तो सिंपल क्या होता है, एक स्विच होता है, उसको दबाइए तो आपका कार इग्नाइट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा पहले के टाइम पे क्या होता था? वी हैव की, और उस की को क्या करते थे? की होल में डालते थे और उसको स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो विच इज इजी फॉर यूज? कौन इजी फॉर यूज है? की और अ सिंपल स्टार्ट बटन, की और अ सिंपल स्टार्ट बटन। चार लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, राहुल सिंह, ऐश्वर्या, ये लोग दो दो। विच इज इजी, अ सिंपल स्टार्ट बटन और अ की? Yes, student, kindly respond. We got Start, sir. okay. Start button. Very good, very good. Now there is one mechanism also कि आपका जो थीफ लोग यूज करते हैं,
थीफ लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वायर्स को कट करते हैं और क्या करते हैं, उनको एक दूसरे से स्पार्क कराने की कोशिश करते हैं कि वो इग्नाइट हो जाए, ठीक है। तो थीफ हैज आल्सो अ मेथड, थीफ हैज आल्सो अ मेथड। तो अब चलिए इसको मैं अगर की को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दूं कि ये है ही नहीं, तो विच इज इजी अ थीफ मैकेनिज्म। आप देखिए हर एक सिस्टम को वो मैकेनिकल डिवाइस है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं बाय जो आपका सिंपल क्या है, इसका जो स्टार्ट बटन का या की का काम क्या है कि वो क्या करे, इग्नाइट करे, स्पार्क करे, ठीक है। स्पार्क करे तो आपका फ्यूल कंबशन होगा और आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही मैकेनिज्म है हमारे पास, थीफ भी वही यूज करते हैं। तो विच इज इजी, अ सिंपल इन दिस सिनेरियो स्टार्ट बटन इज वेरी इजी, एंड इफ यू हैव द नॉलेज, if you have a deep knowledge, then you can start this system via this method, okay। तो ये क्या है, आपको एक इजियर इंटरफेस, आपका एक स्टार्ट बटन जो है वो एक इजियर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो यूजर है वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, किससे, आपके कार से, उसको यूज कर सके, ठीक है। तो दिस इज द फैक्ट। तो इसी तरह से आपका सिस्टम में ठीक है, वी हैव वेरियस डिवाइसेस, आपका सीपीयू है, आपका रैम है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा डिवाइसेस है। आप क्या कर सकते हैं, हार्ड कोड भी कर सकते हैं। आप हार्ड कोड कर करके आप क्या कीजिए, उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कीजिए, प्रोसेस कीजिए, ये सब कीजिए, ठीक है। बट दैट विल नॉट बी इफिशिएंट इन एनी मैनर। सिमरन कुमारी ज्वाइन लेट, ठीक है। तो दिस इज नॉट द इफिशिएंट मैनर। तो आपका क्या होता है, उस जगह पे आपको बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। So this is the need of operating system. This is a glimpse of operating system. Okay, now हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यूजर इंटरफेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम, एनाटॉमी टू अ सिस्टम कॉल। अब ये सिस्टम कॉल कौन प्रोवाइड करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को देखते हैं। तो ए प्रोग्राम बेसिकली आपका ये भी एक प्रोग्राम ही है जो कि रन करता है, आपका एक सिस्टम प्रोग्राम है। आप उस तरह से देख सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है दैट्स रन ऑन द रॉ हार्डवेयर एंड सपोर्ट। ये क्या सपोर्ट करता है, आपको रिसोर्स का एब्स्ट्रैक्शन करना, रिसोर्स की शेयरिंग करना, मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फाइल सिस्टम को मैनेज करना, रिसोर्स ये आपका प्रोसेस को शेड्यूल करना। तो ये सब क्या होता है, ये सब बहुत सारे सपोर्ट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो है क्या, बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम जो रन करता है किस पे, रॉ हार्डवेयर पे, ठीक है। गेट इट। चलिए अब ये रॉ हार्डवेयर क्या है आपका, जैसे कि रूम, बेसिकली रैम यानी रूम में आपका स्टोर किया जाता है इसको, ठीक है। आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल होता है, बायोस कॉल होता है, तो ये आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ये आपका ओएस क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। चलिए, तो दिस आर द वर्क। एब्स्ट्रैक्शन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है हाइड करना। यूजर जो सिस्टम को यूज कर रहा होता है उसको बहुत डिटेल में नहीं पता होता कि कौन सा रजिस्टर का यूज हो रहा है, कितना मेमोरी हमारे पास बाकी है, रैम मेमोरी कितना बाकी है,
सीपीयू अभी किस प्रोसेस को मिला हुआ है, तो ये रिसोर्स का एब्स्ट्रैक्शन करता है। ये सब इंफॉर्मेशन क्या होता है, हिडन होता है फ्रॉम यूजर, हिडन होता है फ्रॉम यूजर। अमन कुमार सिंह, he is also joining class late. One more, Vikas Manji. Vikas Manji and Aman Kumar, why you are joined class so late? कुणाल कुमार, ये क्या मजाक। यस, ये those who join class late, please try to join class before 8-10 AM. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक बार में ये एक ही बात बोलता रहता हूँ कि इससे पहले ज्वाइन कीजिए, इससे पहले ज्वाइन कीजिए। मुझे फिर हार्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, मैं कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ, ठीक है। मैं कुछ जो इंफॉर्मेशन है मैं एट द एंड ऑफ द क्लास शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है, दिस इज अबाउट रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग करने का, शिवानी प्रिया, सुधर नहीं रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग करने का क्या मतलब है कि वी हैव वेरियस kinds of resource, and example I'm giving you example, we have a resource known as printer, ठीक है। अब ये क्या है, अगर एक लैब में, ओके कुणाल, गेट इट, आई गेट इट, बट प्लीज ट्राई टू ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, ओके ओके कुणाल, आई गेट इट। तो क्या होता है कि आपका एक लैब है या फिर आपका कैफे होता है, साइबर कैफे वगैरह में भी आप गए होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अमूमन इन जनरल केस में वहां पे क्या होता है, एक ही प्रिंटर लगा हुआ होता है, जबकि सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रिंटर एक ही लगा होता है। रीजन ये होता है कि एक तो प्रिंटर जो होता है अदर डिवाइसेस जैसे कि रैम या सीपीयू या मेमोरी, इनसे कम यूज होता है, लेस यूजेबल होता है, एक तो ये रीजन है, ठीक है। इसमें इट मींस नॉन फ्रीक्वेंट इसका यूज होता है। नेक्स्ट, अब चूंकि यहाँ पे क्या किया जाता है आपका, अब इसका लेस यूज होता है तो क्या होता है, एक ही सिस्टम लगा होता है, तो इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, शेयर करते हैं बिटवीन सेवरल यूजर्स और सिस्टम, ठीक है। अब जो ये शेयर किया जाता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट रिसोर्स शेयरिंग, कि हम क्या करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं जिसको कि अभी कम यूज हो रहा है, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा इफिशिएंटली उसको यूज कर सके, ठीक है। दिस इज द केस। एब्स्ट्रैक्शन एंड स्टैंडर्डाइज द इंटरफेस टू द यूजर अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर। अब वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर, मैंने आपको बताया कि मैं बताता ही जा रहा हूं कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर। आपके राउटर्स भी कनेक्टेड हैं, आपके प्रिंटर्स भी कनेक्टेड हैं, आपके लैन केबल्स भी कनेक्टेड हैं, आपके पेरिफेरल माउस कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, यूएसबी कनेक्टेड है, सीपीयू है, रैम है, बहुत सारा डिवाइस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर है। तो इनके बीच में भी ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हाउ दे विल कम्युनिकेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मैनेज टू द हार्डवेयर रिसोर्सेज, ईच प्रोग्राम गेट्स इट टाइम टू द रिसोर्स। ये तो हम लोगों ने मैनेजमेंट देखा है कि हार्डवेयर को कैसे मैनेज किया जाता है, एज एग्जांपल ऑफ सीपीयू वी हैव सीन दिस। ईच प्रोग्राम गेट स्पेस ऑन द रिसोर्सेज, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। मे हैव पोटेंशियली कन्फ्लिक्टिंग गोल, ये भी हो सकता है कि किसी का गोल हो कि हमको ज्यादा फास्ट एक्सेस करवाना है, किसी का गोल हो कि हमको ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देना है, ठीक है, किसी का गोल हो कि हमको कनेक्टिविटी देना है। तो ये गोल्स को भी मैनेज करता है कि डिफरेंट सिस्टम के क्या गोल्स हैं और वो गोल्स अचीव हों। पूरा का पूरा तो अचीव नहीं होगा बट अचीव हो। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इन अ सिस्टम वी हैव कैशे मेमोरी,
In a system we have main memory, in a system we have secondary memory. मेमोरी में ही इतने टाइप है, मेमोरी में ही इतने टाइप है, हर एक की फंक्शनैलिटी अलग है, हर एक का कॉज अलग है। साहिल कुमार कोई थे अभी, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट कंफ्लिक्टिंग गोल्स को भी ये क्या करता है, अचीव करने में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। यूज हार्डवेयर इफिशिएंटली, गिव्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस टू द ईच यूजर, जो भी यूजर होते हैं उनका। साहिल कुमार, इज ही ज्वाइन right now? 37 is Sahil Kumar. Why you joined class so late? Please tell me. Now, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री, साहिल कुमार प्लीज टेल मी व्हाई यू ज्वाइन क्लास लेट। नाउ वी विल गो इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम टाइमलाइन। अब हम थोड़ा हिस्ट्री के पीछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता था, जो फर्स्ट जनरेशन डिवाइस था इसको कब बनाया गया था, 1945 से लेकर के 1955 के बीच में। इस समय जो भी डिवाइसेस थे, सिस्टम थे, उनको क्या कहा जाता था, फर्स्ट जनरेशन। अभी उनको फर्स्ट जनरेशन डिवाइस कहा जाता है। इसमें बेसिकली जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते थे वो वैक्यूम ट्यूब और प्लग बोर्ड यूज किए जाते थे। मैकेनिकल, पूरा का पूरा मैकेनिकल डिवाइस होता था, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस नहीं है। फिर सेकेंड जनरेशन में कुछ इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस यूज किए गए और ये दौर था 1955 से 1965 का, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए और बैच सिस्टम यूज किए गए, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए और बैच सिस्टम यूज किए गए। फिर थर्ड जनरेशन आया और ये चला 1965 से। यहाँ 10 साल का डिफरेंस है, इजिली आप याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 15 साल का डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 15, थर्ड जनरेशन 15 साल तक चला था, 1965 से लेकर 1980 तक। और इसमें इंटीग्रेटेड आईसी चिप पढ़ते हैं ना, आईसी चिप, उसको यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में। और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया था मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी इन द रेडी स्टेट, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी इन द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट आप जानते हैं, प्रोसेस के वेरियस स्टेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। फिर आया आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आपका कब से कब तक था, 1980 से प्रेजेंटली। इसमें लार्ज स्केल LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया और इसी को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा गया। फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है इसमें कि सिस्टम कनेक्टेड बाय हाई स्पीड नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क से सिस्टम कनेक्ट हुआ, जो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। और वाइड एरिया रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है। वाइड एरिया में भी अगर आपका सिस्टम बहुत दूर भी है, एक सिस्टम आपका अगर मान लिया जाए ऑस्ट्रेलिया में है और एक सिस्टम इंडिया में है, दोनों इंटरकनेक्टेड है और इस सिस्टम के पास रिसोर्सेस कम है, तो ये क्या कर सकता है, वाया द हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन इट कैन यूटिलाइज दिस सिस्टम एंड गेट बेनिफिटेड। This generation is about operating system, not about what you are talking. Okay. Okay, very good friend. now अगर हम फर्स्ट जनरेशन को और डिटेल में जाने तो फर्स्ट जनरेशन में क्या किया जाता था, डायरेक्ट इनपुट प्रोवाइड किया जाता था। जैसे कि मैंने कहा ना कि कार है, आप डायरेक्टली क्या किया, थीफ क्या किया, उसके वायर्स निकाला और उसको क्या किया, स्पार्क कराया तो वहां कनेक्ट हो गया वाया दैट और आपका सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो उसी तरह से क्या होता था, डायरेक्ट इनपुट फर्स्ट जनरेशन में दिया जाता था। रन्स वन जॉब एट अ टाइम, एक सिंपल एक ही जॉब रन होता था फर्स्ट जनरेशन में। अब इसको क्या किया जाता था, एंटर इट इनटू द सीपीयू, मतलब कंप्यूटर में माइट रिक्वायर रीवायरिंग। मतलब कि क्या है कि वहां पे हार्ड वायर्ड किया जाता था।
आप ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, हार्ड वायर्ड सिस्टम, हार्ड वायर्ड मतलब कि एक मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ पहले, ठीक है। तो हार्ड वायर्ड में क्या होता है कि आपका, जैसे कि आपके घर में फैन वगैरह लगा हुआ है, फैन कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ये एक हार्ड वायर्ड कनेक्शन किया गया है। इफ यू नीड टू कनेक्ट द एसी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन एक वायर एसी में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका पाथ अलग होगा, उसको हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी कि उसको 220 वोल्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी अलग, उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होगा, तो उसके लिए आप एक अलग डिवाइस लगाएंगे, ठीक है, स्टेबलाइजर लगाया जाएगा, लाइक दिस। तो ये सिचुएशन कहलाता है हार्ड वायर। तो हार्ड वायर में अगर हमें कुछ न्यू चाहिए होता है तो हमेशा हमें रीवायरिंग करनी होती है। और ये हार्ड वायर जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा एक मैं बता दूं, ओएस और जो आपका कोआ है ना, इट इज इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो आप हार्ड वायर्ड का कॉन्सेप्ट भी जब आपको टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी तो उसमें आप हार्ड वायर्ड का भी नाम सुनेंगे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। अब क्या होता था, अब सिस्टम में जॉब को दिया जाता था हार्ड वायर्ड करके, उसको रन किया जाता था, रन किया, और रिकॉर्ड जो आपका होता था हमें मेंटेन करना पड़ता था फॉर द रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम से जो रिजल्ट आया उसको कहीं मेंटेन करेंगे, बही खाता टाइप का, कि आपका जॉब 1 दिया था जो, उसका ये रिजल्ट आया कि एक्स की ये वैल्यू थी, वाई की ये वैल्यू थी, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब इस टाइप से रन होते थे। अब ये प्रॉब्लम क्या होता था, लॉट्स ऑफ वेस्टेड कंप्यूटर टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, एक बार में आप एक ही जॉब को एंटर कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, हम मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती कि है कि अभी आप सुनेंगे कि पैरेलली वर्क कर रहे हैं। तो राहुल कुमार सिंह, नाउ ही जॉइन। तो ये क्या होता था, लॉट्स ऑफ टाइम क्या हो जाता था, हमारा वेस्ट हो जाता है इसमें, इस केस में क्या होता है, लॉट्स ऑफ टाइम जो होता है हमारा वेस्ट हो जाता है। कंप्यूटर वाज आइडल ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, मतलब कि फर्स्ट स्टेप जहां पे की रीवायरिंग डिकोडिंग मतलब कोडिंग वगैरह की जाती थी, वहां पे क्या होता था, कंप्यूटर आइडल स्टेट में रहता था, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको क्या है, हार्ड वायर्ड किए, कनेक्शन किए, दिस किए, दैट किए, अब रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस समय कंप्यूटर पूरी की पूरी आपका आइडल स्टेट में होता था, कोई फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा होता था। कंप्यूटर उस समय बहुत एक्सपेंसिव होते थे, जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाते थे, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर कहा जाए तो एक रूम में पूरा का पूरा सिस्टम होता था, एक सिस्टम एक रूम में होता था, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता था। और उस समय हार्डवेयर का कॉस्ट हार्डवेयर का कॉस्ट ग्रेटर होता था देन आपका सॉफ्टवेयर के कॉस्ट से। सॉफ्टवेयर वाज चीपर इन कंपैरिजन टू द हार्डवेयर। अब इसका गोल क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन का गोल होता था, मेक बेटर यूज ऑफ एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, कंप्यूटर टाइम। अब जो कंप्यूटर टाइम है ना, ये भी एक कमोडिटी की तरह यूज की जाती थी, लाइक ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये भी एक कमोडिटी की तरह यूज की जाती थी, ठीक है। यही गोल होता था आपका फर्स्ट जनरेशन में। तो चलिए, नेक्स्ट आपका आया क्या, नेक्स्ट आपका आया सेकेंड जनरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, बैच सिस्टम, बैच सिस्टम यूज किया गया। अब बैच सिस्टम में क्या होता था, बी आर बेसिकली, अगर एक सेम टाइप का वर्क होगा, सेम टाइप का वर्क होगा, तो उसको करेंगे हम क्या, कि उस जॉब्स को, उन जॉब ये वेरियस जॉब है जिसमें सिर्फ हमको क्या करना है, दो वेरिएबल को ऐड करना है। ये सारे जॉब है उस टाइप के जिसमें ऐड करना है, तो इसको हम एक बैच बना लेते थे, वी कॉल दिस एज अ बैच। अब ये बैच है, अब ये बैच क्या होता था, यही बैच को हम सिस्टम में देते थे। तो इस तरह से क्या होता था, सिमिलर जॉब्स जो होते थे वो रन होते थे, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता था, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट कि
हमारा यहाँ पे आउटपुट टेप है, सिस्टम टेप है, इनपुट टेप है, ठीक है, यहाँ पे टेप ड्राइव है, कार्ड रीडर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी कैन यूज वेरियस डिवाइसेस हियर। अगर आपका सीपीयू में काम चल रहा है तो कोई आपका काम कर सकता है आपका सिस्टम के अंदर में, ठीक है, आपका रेडी क्यू में रह सकता है, लाइक दिस ब्रिंग्स कार्ड टू 1401। अब इसको हम क्या करेंगे, कार्ड रीडर है तो कार्ड ही प्रोवाइड करेंगे, कार्ड रीडर ऑन टू इनपुट टेप। अब ये जो टेप होगा उसमें कार्ड रीडर को प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, पुट इनपुट टेप ऑन 7094। अब ये 7094 है। अब बेसिकली बताना चाह रहा है कि ये सब जॉब्स जो है बेसिकली 1401, 10794, 1401, तो ये बेसिकली सब एक ही टाइप के काम है, ठीक है। अब इनपुट टेप को 7094 की ओर लाया गया, अब ये अपना काम करेगा। परफॉर्म द कंप्यूटेशन राइटिंग द रिजल्ट टू द आउटपुट टेप। अब जो आउटपुट टेप है उस पर रिजल्ट लिख दिया गया। पुट आउटपुट टेप टू 1401 विच प्रिंट्स आउटपुट। अब हम ये जो 1401 था, था उसको हम आउटपुट प्रोवाइड कर दिए बाय द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिमिलर काम है उसको हम क्या करें, एक बैच बना करके सिस्टम को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बेटर सिस्टम यूटिलाइजेशन हो रहा है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो गया है, रिसोर्स, टाइम, मेमोरी सब कुछ आपका बेटर यहां पे है, ठीक है। तो चलिए ये हुआ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन को और हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं तो क्या हुआ, दिस इज द स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर है, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। लाइक एक आपका फोर्ट्रॉन प्रोग्राम है, फोर्ट्रॉन प्रोग्राम में जॉब ये है कि ये जॉब है, इसको ये करना है, दीज आर द सम ऑफ द डेटाज रिलेटेड विद द जॉब। अब ये फोर्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग है, तो ये फोर्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग है, ये क्या होगी, ये यहाँ पे प्रोग्राम रन करे, ये करेगा, आपका लोड होगा, रन होगा, डेटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा प्रोग्राम को, और ये वर्क करेगा, और इस तरह से वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द सीक्वेंस, जो स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस होता है। सेकेंड जनरेशन में जो जॉब होती थी वो इस टाइप से रन होती थी कि डेटा आपसे ले लिया गया, फोर्ट्रॉन को स्टार्ट किया गया, उसने फोर्ट्रॉन प्रोग्राम स्टार्ट किया, लोड हुआ मेमोरी में, उसके बाद लोड हुआ, रन हुआ, उसको जो डेटा रिक्वायर्ड था वो प्रोवाइड कर दिया गया, और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो इस टाइप के जितने भी जॉब होंगे उनको क्या किया जाएगा, एक टूल बना करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिस्टम को, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड जनरेशन। Now come upon to the one of the very important topic known as spooling. ये पूछा भी जाता है वेरियस इंटरव्यूज में, स्पूलिंग पूछते हैं कि स्पूलिंग होता क्या है। तो स्पूलिंग में क्या किया जाता था, ओरिजिनल बैच सिस्टम यूजेस टेप ड्राइव। अच्छा, मैग्नेटिक टेप आपने सुना होगा ना, हैव यू हर्ड अबाउट मैग्नेटिक टेप? किसी ने मैग्नेटिक टेप देखा है? किसी ने मैग्नेटिक टेप देखा है? देखे नहीं है सर, सुने हैं उसके बारे में। अच्छा, सोचिए मतलब कितना डिफरेंस आ गया। आई हैव सीन द मैग्नेटिक टेप, आई यूज्ड इट ऑल्सो, बट आपने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। जो हम यूज करते थे कैसेट वगैरह रिकॉर्डिंग के लिए, थोड़ा एक दशक पीछे जाएंगे तो वहां पे VCR होता था, अभी की तरह तो इंटरनेट नहीं होता था। उस समय VCR पे लोग क्या होते थे, मूवी देखते थे, ठीक है। तो उसमें कैसेट लगाते थे लोग, और वहां पे क्या होता था, वो कैसेट जो होता था एक टेप होता था, बेसिकली उस टेप में इंफॉर्मेशन स्टोर होता था, और दो क्या कहा जाए इस तरह से व्हील होते थे, ये डायरेक्शन में मूव करते थे और टेप मूव करता था, और यहाँ पे हेड लगा हुआ था, और वाया दिस हेड वो मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता था और ये इंफॉर्मेशन पास होता था, ठीक है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म, दिस इज द टेप ड्राइव। तो अब क्या हुआ लेटर,
यस, किसी का माइक, निखिल कुमार, आई एम म्यूटिंग यू। ठीक है, लेटर क्या हुआ, बैश सिस्टम यूजेस डिस्क। अब क्या किया गया, डिस्क वगैरह को यूज किया जाने लग गया। पहले आपका टेप यूज होता था, फिर क्या हुआ, डिस्क। डिस्क तो देखा होगा, सीडी, डीवीडी। यस सर। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क देखा है आप लोगों ने? किसी ने भी फ्लॉपी डिस्क देखा है क्या? फ्लॉपी डिस्क देखा है क्या? निखिल कुमार, आपके पास फ्लॉपी डिस्क है क्या? ओके, वेरी गुड। फ्लॉपी डिस्क, निखिल आप अपने क्लासमेट्स को भी कभी दिखा दीजिएगा फ्लॉपी डिस्क क्या होता था। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा, फ्लॉपी डिस्क क्या होता था बेसिकली, एक आपका उस समय फ्लॉपी डिस्क के लिए आपका एक जो आपका सीपीयू होता था ना, सीपीयू पूरा, ये सीपीयू जिसको हम कहते हैं आपका, उसमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरह यूज किया जाता था फ्लॉपी डिस्क को। ये एक क्या होता था, कैबिनेट में आपका सिंपल एक लो स्टोरेज डिवाइस की तरह ये वर्क करता था। ठीक है, तो बैच सिस्टम जब यूज किया जाने लगा तो डिस्क को फॉर द बफरिंग यूज किया जाता था। उसमें जो ऑपरेटर होते थे, रीड करते थे कार्ड्स को ऑन टू डिस्क अटैच टू द कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर रीड करता था जॉब फ्रॉम द डिस्क कि क्या, किस टाइप का जॉब है, क्या क्या हमको करना है। अब कंप्यूटर राइट करता था जॉब रिजल्ट टू द डिस्क। अब उसी डिस्क पे जॉब का रिजल्ट राइट करने लगा। अब ऑपरेटर क्या होने लगा, ऑपरेटर डायरेक्टेड दैट जॉब रिजल्ट बी प्रिंटेड ऑन द डिस्क। ऑपरेटर को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि जॉब अब आपका फाइनली डिस्क में आपका आ चुका है। डिस्क इनेबल्ड simultaneous peripheral operation on line, which is called as spooling. अब क्या होने लगा, अब इस तरह से साइमल्टेनियसली हम वेरियस ऑपरेशंस कर सकते थे। मल्टीपल डिस्क को आप कनेक्ट करते थे सिस्टम में, और क्या होता था उससे, आप एक साथ बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस को हम रन कर सकते थे वहां पे। स्पूलिंग बेसिकली यूज किया जाता है फॉर लाइक आपका जो स्पूल्ड डिवाइस, आपका प्रिंटर को ना स्पूल्ड डिवाइस भी कहा जाता है। प्रिंटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके पास मान ले जाए आपने एक जॉब दिया इसको J1, एक इसको J2 जॉब मिला, J3 जॉब मिला। ठीक है, तो किसी ने दिया कि 2 पेज प्रिंट करना है, किसी ने 5 पेज दिया, किसी ने 15 पेज दिया, इस टाइप से कि प्रिंट करना है। अगर J1 जैसे J1 पहले आ गया तो अब ये क्या करेगा, J1 को प्रिंटिंग का काम करेगा, और उसी समय J2 भी आ गया जब प्रिंट हो रहा था। तो अब प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर अपने बफर्ड मेमोरी के हेल्प से J2 का क्या वर्क है उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अब ऐसा तो नहीं होता है ना, आपने कभी ये तो नहीं देखा होगा कि एक ही प्रिंटर कनेक्टेड है और 2 यूजर ने क्या किया, प्रिंट कमांड दिया, तो यूजर 1 का एक पेज प्रिंट हुआ, यूजर 2 का एक पेज प्रिंट हुआ, यूजर 1 का सेकंड पेज प्रिंट हुआ, यूजर 2 का सेकंड पेज प्रिंट हुआ। इस टाइप से वर्क तो होती नहीं है। वहां पे क्या वर्क होता है, पहले आपका पूरा का पूरा जो यूजर 1 है उसका पेज प्रिंट होगा, फिर आपका यूजर 2 का पेज प्रिंट होगा। तो इस टाइप से स्पूल्ड डिवाइस की तरह वर्क करके बफर को यूज करता है फॉर द प्रिंटिंग पर्पस। तो दिस इज अबाउट द स्पूलिंग। तो क्या होता है, कंप्यूटर ओवरलैप इनपुट आउटपुट ऑफ वन जॉब विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर। अब ये क्या हुआ, J1 प्रिंटिंग का काम कर रहा था, J2 यहाँ आया, तो ये क्या कर रहा है, J2 ओवरलैप करना चाह रहा है J1 को। बट फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसिव सीपीयूज, उस समय सीपीयूज के लिए बेसिकली यूज किया जाता था ये। अभी मैं आपको प्रिंटर के लिए बता रहा हूं, तो जो आपका एक्सपेंसिव डिवाइस होता है उसके लिए आपका स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हर एक के घर में प्रिंटर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक के घर में आपने मतलब जितने भी सिस्टम होंगे
लैपटॉप या सिस्टम, डेस्कटॉप होंगे, सबके पास प्रिंटर तो नहीं होगा, लेकिन क्या है कि सबके पास सिस्टम तो है, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंसिव डिवाइस को जब हम यूज करना चाहते हैं तो उसमें स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। स्टिल ओनली वन जॉब एक्टिव एट एनी टाइम। अब आपने देखा होगा कि J1 ही एक्टिव है, J2 स्टिल वेटिंग स्टेट में है, J3 स्टिल वेटिंग स्टेट में। जब J2 को मिलेगा यहाँ पे तो क्या होगा, J1 उस समय अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, J2 इन रनिंग स्टेट चला जाएगा और J3 विल वेटिंग। तो इस तरह से जब भी आप देखेंगे प्रिंटर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब रहता है, इसीलिए उसको स्पूल्ड डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में क्या आया कि मल्टीपल जॉब्स इन मेमोरी। आप जानते हैं कि इन द रेडी क्यू इफ वी विल हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रेडी टू एग्जीक्यूट देन इट विल कॉल्ड एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, इन अ करंट सिनेरियो वी हैव मल्टीपल प्रोसेस, P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है, P5 भी है, लाइक दिस वी हैव वेरियस प्रोग्राम टू रन। अब इनको क्या करना है, इनको एक दूसरे से प्रोटेक्ट भी करना है, ये नहीं कि ओवरलैप हो जाए, आपका कोड क्या हो, इंटरचेंज हो जाए किसी से। तो मल्टीपल जॉब्स अगर रिसाइड करें सिस्टम में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज हो, वी विल गिव द प्रोटेक्शन ऑफ वन जॉब फ्रॉम अनदर जॉब। अब ये कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच जॉब एज वेल। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनको प्रोटेक्ट तो करता ही करता है, एज वेल एज ओएस का भी तो अपना कोड है, ओएस का भी तो अपना कोड है, उस कोड को भी ओएस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बादल कुमार इज ज्वाइनिंग नाउ, ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गिविंग यू okay, I'm giving you link for today's class attendance. Please fill it up. I have provided you link for today's class attendance. Please fill it up. 9 o'clock से आप पहले fill कीजिए इसको, ठीक है। We have sufficient time. 13 minute is enough. आपके उसमें 3-4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं उसमें, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो। नाउ आप सभी का मैंने असाइनमेंट 1 जो है वो इवैल्यूएट कर दिया है, सभी को इवैल्यूएटेड असाइनमेंट मिल चुका है स्टूडेंट्स। सर मेरा लैब असाइनमेंट सर नहीं जमा कर पाए थे सर, हम सर कुछ इशू था इसलिए नहीं, कहीं गए हुए थे सर, इसके कारण नहीं जमा कर पाए। आप ये इशू मुझे कब बताए थे, मुझे ये सर इशू के, हमने बता हाँ बताया था हमें ओके ओके, सभी को यस सर इवैल्यूएटेड, तो सभी को मार्क्स वगैरह में मिल गए होंगे और कमेंट भी मिल गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, यस यस यस, ओके सर गुड गुड, यस। अगर आप माइक से बोल रहे हैं ना, अगर माइक्रोफोन से बोल रहे हैं तो प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम, क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ कि कौन बोल रहा है, तो प्लीज टेल मी एटलीस्ट योर नेम। सर मेरा भी मतलब करेक्ट नहीं हुआ है व्हाट इज योर नेम? असाइनमेंट। तनुश्री शर्मा। तनुश्री, आपका मैं कमेंट तो लिख दिया था ना, आपको बता दिया था ना मैंने।
हाँ सर हम रीसेंड कर दिए सर हैं फिर से सर, सर वेरीफाई कर बट लीजिएगा। आप रीसेंड कर रहे हैं तो उसमें ये दिक्कत होगा ना कि वहां पे दिखाएगा कि लेट सबमिशन हो रहा है, ठीक है। सर हम यस ना सर। ये लैब असाइनमेंट जमा कर सकते हैं सर आज। हम का क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सर राजकुमार बोल रहे हैं, राजकुमार सर। राजकुमार जी। तो राजकुमार जी, एक बात बताइए यस कि सर। आपने आज क्यों असाइनमेंट सबमिट किया, जबकि उसका डेडलाइन तो आई थिंक सर हमने 11 या 12 ही तारीख था उसका। 11 तक ही था सर, हम कहीं और गए थे सर। हाँ तो सर, कहीं मुझे मतलब इंफॉर्मेशन दूसरी जगह गए दीजिएगा, थे, तब किन्हीं तो का शादी आपके उदी था असाइनमेंट तो। में कहीं लिखा हुआ है कि मैं यहाँ गया हुआ था। असाइनमेंट में नीचे नोट्स में लिखे हो कि यहाँ पे गए हैं। मैं पूरा असाइनमेंट पढ़ता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, मुझे पता होता है कि ओके, गॉट इट। कहाँ गए हुए थे राजकुमार, आप बताएंगे क्यों गए हुए थे जब आपका क्लास चल रहा है? सर किन्हीं का मैरिज था तो उसी में इन्वॉल्व हो गया था सर, मुझे इसके कारण इन्फॉर्म से नहीं हो किया था पाया। आपने, मुझे प्रायर इंफॉर्मेशन थी इस चीज की, किसी भी मीडियम से। मैं आपने मुझे मेल किया, आपने व्हाट्सएप किया, आपने गूगल क्लासरूम पे बताया। अब कितना आपको रिसोर्स चाहिए? यस टेल मी राजकुमार, कितना रिसोर्स मैं प्रोवाइड सर करूं? जिस सॉरी सर। सॉरी, देखिए सॉरी इज नॉट दैट। मैं देखिए, रूल इज रूल। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिनका लेट सबमिशन होगा और जिनका मिसिंग होगा, जिनका मिसिंग है उसका तो मैं इवेल्युएट कर भी नहीं सकता हूं। जिनका लेट सबमिशन होगा उसका मैं इवेल्युएट नहीं करूंगा। मैं ये बात आपको बता चुका हूं। हाउ यू विल गेट लर्न? अभी आप सॉरी बोल के निकल जाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से गलती करेंगे। नहीं सर, नहीं नहीं सर, हम ना अभी आज ही सबमिट कर देते हैं सर। वो थोड़ा सा सर लेट हो गया सर, मतलब जिस कारण हम नहीं सबमिट कर पाए। आप क्लासेस कितना किए हैं राजकुमार जी, बताएंगे आप? ये बीच में ना 2-3 छूटा हुआ है और बाकी तो सर क्लास कर रहे हैं। 3-4 सर ये बीच में छूटा ठीक हुआ है, है बस। क्लासेस कीजिए कंटिन्यूअस। और आप जो अब असाइनमेंट सबमिट करने की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ड्यू डेट खत्म हो चुका है। और एज पर द इंफॉर्मेशन, मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको क्लासरूम पे जहां पॉसिबल है मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और मैं ऑल टाइम रिप्लाई करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि आप मुझे रात के 9 बजे भी मैसेज कर रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। आप सुबह के 6 बजे भी मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। टाइम बाउंडेशन नहीं है मेरे पास। मैंने देखा ही नहीं Whenever I सर will free, then I will reply. एक्चुअली सर, Yes लेट। राजकुमार, आपका ये जो लैब 1 है वो सबमिट नहीं हो पाएगा, मैं इवेल्युएट नहीं हाँ कर सकता, ठीक है। आप जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, अब उस पर फोकस सर, किए। तो आपको कोई पता है नेक्स्ट असाइनमेंट भी मिल चुका है आप लोगों को। नेक्स्ट असाइनमेंट भी मैं दे चुका हूं, आपको पता है? नहीं डू यू हैव नॉलेज अबाउट दैट? क्या मिला है, कैन यू टेल मी? क्या असाइनमेंट मैंने दिया है, प्लीज टेल मी। ओके, इट मींस आपको पता नहीं है कि क्या असाइनमेंट मिला है। सर वो डोंट ट्राई। गेट गेट का क्वेश्चंस को सॉल्व करके हाँ कर सकते। तो आई हाँ थिंक सर। आप, हाँ सर, हाँ सर, क्या करें? आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं राजकुमार, अभी नहीं तक सर, आपको। मैंने अभी चेक किया सर। प्लीज डोंट लाई टू मी, ठीक है। मैं भी बीटेक कर चुका हूं, एमटेक कर चुका हूं, जॉब कर रहा हूं। मुझे पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, मुझे पता होता है। बहुत लोगों के असाइनमेंट मैंने देखे कि व्हाट दे आर डूइंग, वो तो मैंने कमेंट्स भी किए हैं और वो पता चलेगा उनको। डोंट ट्राई टू चीट मी। और मैं एक इंफॉर्मेशन, सर यस लेकिन यस प्लीज राजकुमार, सर आपका कंसर्न और कोई कंसर्न है क्या राजकुमार? नहीं सर, मैं आप जो यही, असाइनमेंट मिला सर, हम वो टाइम पे तो यस यस, सबमिट करूंगा सर, वो तो है। वो पर वो सब हाँ ना उस, असाइनमेंट हम नहीं, एक तो लेट से भी देख पाओ सर। सर
इशू हो गया था, मैम किन्हीं का मैरिज था, उसमें मैं इन्वॉल्व हो मैरिज गया था इज सर, नॉट अ जेन्युइन इशू, जिसके कारण सर नहीं मैरिज इज सबमिट नॉट अ जेन्युइन इशू, ठीक है। मैरिज इज नॉट अ कंसिडरेबल जेन्युइन इशू एट दिस टाइम। ऐसे तो आपको मैरिज में जाना भी नहीं चाहिए अभी, मैं तो ये इवन ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जितना कम से कम लोगों से सर। मिलें, फैमिली कोरोना का मेंबर था। टाइम है। ठीक है, मैं एक हाँ और सर, वो इंफॉर्मेशन, फैमिली एक मेंबर मैं, था। ओके ओके ओके, आई गेट इट योर पॉइंट। ओके स्टूडेंट, मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं असाइनमेंट 2 जो कर रहे हैं, वो अपने कॉपी के हर एक पेज पे अपना नाम, रोल नंबर, सब कुछ मेंशन करेंगे, ठीक है। I get to know that some of the students are trying to cheat. हर एक पेज पे मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, हर एक पेज पे आपका नाम, आपका इंफॉर्मेशन, रोल नंबर क्या है, क्या असाइनमेंट है, वो मेंशन होना चाहिए। डोंट ट्राई टू चीट मी। मुझे पता चलता है, मैंने कुछ लोगों को, आपके ही क्लासमेट्स को इन्फॉर्म किया है कि दे आर ट्राइंग टू चीट। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, ना तो वो क्लास कर रहे हैं, ना ही कुछ। जिनका नहीं होगा ये इंफॉर्मेशन, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, आपके ईच एंड एवरी पेज मस्ट कंसिस्ट, ईच पेज of your assignment must consist your name, department, semester, ओके। हर एक पेज में ये चीज होना चाहिए, और इवन आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक पेज में ये 4 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। at top of your page, this 4 information must contain in each and every assignment submitted by you. It is very heart breaking to see that, कि बहुत दिल दुखता है ये चीज देख करके। मैं अपना, इवन संडे था, मैं अपना आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं सुबह से, आपने जिन बहुत लोगों का मैंने सुबह में, बहुत लोग का दोपहर में, बहुत लोग का शाम में, इवन 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मैंने काम किया है, आपके असाइनमेंट को इवेलुएट किया है, ताकि बच्चों को पता चले कि किस टाइप से असाइनमेंट करनी है, उनको मार्क्स मिल जाए, सब मिल जाए, ठीक है। इवन वो लोग असाइनमेंट 2 भी कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा था, मैंने बोला भी था कि आपका असाइनमेंट 2 आपका सबमिशन से पहले आपका असाइनमेंट 1 इवेलुएट हो जाएगा। सो आई मेक दैट प्रॉमिस एंड आई फॉलो दैट प्रॉमिस।